नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। दोपहर के 2:30 बज चुके हैं। खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। और खबरनामे में सबसे पहले बड़ी और अहम खबर, जहां सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आज दफा 370 पर अपना फैसला सुनाया और फैसले में क्या कुछ हम आपको बताएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 की मनसूखी को बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने अपने फैसले में कहा कि आर्टिकल 370 का निफाज अबूरी था और इसको हटाने का फैसला सही था। अदालत ने 30 सितंबर 2024 तक जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात मुनक्किद कराने की इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को हिदायत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर को जल्द ही रियासत का दर्जा बहाल करने की भी हिदायत दी है। वही अदालत ने कहा है कि लद्दाख को यूटी बनाने के फैसले को भी बरकरार रखा है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ ने अपनी जजमेंट में कहा कि भारत के साथ इल्हाक के दस्तावेज पर दस्तखत होने के बाद जम्मू कश्मीर खुद मुख्तारी का कोई अंसर बरकरार नहीं रखता है। जम्मू कश्मीर के लिए कोई दाखिली खुद मुख्तारी नहीं। सदारती राज के ऐलान को चैलेंज करना दुरुस्त नहीं है। सदर के इख्तियारात के इस्तेमाल का सदारती हुक्मरानी के मकसद के साथ माकूल ताल्लुक होना चाहिए। रियासत के लिए कानून साजी करने का पार्लियामेंट का इख्तियार कानून साजी की ताकत को खारिज नहीं कर सकता। आर्टिकल 370 एक आरजी इंतजाम था। जब दस्तूर साज असेंबली को तहलील किया गया तो सिर्फ असेंबली का अबूरी इख्तियार खत्म हो गया और सदारती हुक्म पर कोई पाबंदी नहीं थी। सदर ने ताकत का इस्तेमाल गैर आईनी नहीं था और रियासत के साथ किसी इत्तेफाक की जरूरत नहीं थी। सदर की तरफ से ताकत का मुसलसल इस्तेमाल जाहिर करता है कि इंजमाम का बतदरीज अमल जारी था। इसी तरह सीओ 273 दुरुस्त है। जम्मू कश्मीर का आईन फाल है और इसे बेकरार दिया गया है। सदारती ताकत का इस्तेमाल गैर आईनी नहीं। सॉलिसिटर जनरल ने बयान दिया कि जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा बहाल किया जाएगा। हम लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाने के फैसले को बरकरार रखते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को हिदायत देते हुए कि तंजीम नौ के कानून की दफा 14 के तहत इंतखाबात होने चाहिए और 30 अक्टूबर 2024 से कबल मुनक्किद की जाए और जल्द अज जल्द जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा भी बहाल किया जाए। The above discussion, the following are the conclusions. A. The state of Jammu and Kashmir does not retain any element of sovereignty after the execution of the instrument of accession and the issuance of the proclamation dated 25 November 1949 by which the Constitution of India was adopted. The state of Jammu and Kashmir does not have internal sovereignty which is distinguishable from the powers and privileges enjoyed by other states in the country. Article 370 was a feature of asymmetric federalism and not sovereignty. B. The petitioners did not challenge the issuance of the proclamations under Section 92 of the Jammu and Kashmir Constitution and Article 356 of the Indian Constitution until the special status of Jammu and Kashmir was abrogated. The challenge to the proclamations does not merit adjudication because the principal challenge is to the actions which were taken after the proclamation was issued. C. The exercise of power by the President after the proclamation under Article 356 is issued is subject to judicial review. The exercise of power by the President must have a reasonable nexus with the object of the proclamation. The person challenging the exercise of power must prima facie establish that it is a mala fide or extraneous exercise of power. Once a prima facie case is made, the onus shifts to the Union to justify the exercise of such power. D. The power of Parliament under Article 356(1)(b) to exercise the powers of the legislature of the state cannot be restricted to lawmaking power, thereby excluding non-lawmaking power of the legislature of the state. Such an interpretation would amount to reading in a limitation into the provision contrary to the text of the article. E. It can be garnered from the historical context for the inclusion of Article 370 and the placement of Article 370 in Part 21 of the Constitution that it is a temporary provision. F. The power under Article 370 Clause 3 did not cease to exist upon the dissolution of the Constituent Assembly of Jammu and Kashmir. When the Constituent Assembly was dissolved, only the transitional power recognized in the provisor to Article 370 Clause 3, which empowered the Constituent Assembly to make its recommendations, ceased to exist.
It did not affect the power held by the President under Article 370, Clause 3. G. Article 370 cannot be amended by exercise of power under Article 370(1)(d). Recourse must have been taken to the procedure contemplated by Article 370, Clause 3 if Article 370 is to cease to operate or is to be amended or modified in its application to the state of Jammu and Kashmir. Paragraph 2 of CO 272, by which Article 370 was amended through Article 367, is ultra vires Article 370, Clause 1, Clause D, because it modifies Article 370 in effect without following the procedure prescribed to modify Article 370. An interpretation clause cannot be used to bypass the procedure laid down for amendment. H. The exercise of power by the President under Article 370(1)(d) to issue CO 272 is not mala fide. The President, in exercise of power under Article 370, Clause 3, can unilaterally issue a अदालत उज़्मा के दफा 370 के फैसले पर अब जरा नजर डालते हैं साल 2018 यानी कि जब जम्मू कश्मीर के अंदर सरकार टूट गई और भारतीय जनता पार्टी ने हिमायत वापस ली, उसके बाद क्या कुछ हुआ है। दिसंबर 20, 2018 रियासत जम्मू कश्मीर में आइन के दफा 356 के तहत इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए मरकज ने सदर आज नाफिज कर दिया। उसके बाद ही 3 जुलाई 2019 को इसमें मजीद तौसी कर दी गई है। 5 अगस्त 2019 मरकज ने दफा 370 की दफात को मनसूख कर दिया, जिससे जम्मू कश्मीर को खुसूसी हैसियत थी। 6 अगस्त 2019 को दफा 370 को खत्म करने के सदारती हुक्म को चैलेंज करने वाली पहली दरख्वास्त एडवोकेट एमएल शर्मा ने दायर की, जिसके बाद ही जम्मू कश्मीर के एक और वकील शाकिर शबीर भी शामिल हुए। 10 अगस्त 2019 को नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक अर्जी दायर की, जिसमें कहा गया कि रियासत की हैसियत में लाई गई तब्दीलियों ने उनके मंडेट के बगैर उसके शहरियों के हुकूक छीन लिए हैं। 24 अगस्त 2019 को प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने मवासलात पर पाबंदियां आयद करने के मरकज और जम्मू कश्मीर इंतजामिया के फैसले की हिमायत करते हुए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया। 24 अगस्त 2019 सुप्रीम कोर्ट ने कश्मीर टाइम्स के एडिटर की तरफ से सहाफियों पर आयद पाबंदियों को हटाने की दरखास्त पर मरकज जम्मू कश्मीर इंतजामिया को नोटिस जारी किया। 28 अगस्त 2019 उस वक्त के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की सरबराही वाली बेंच ने इस मामले को 5 जजों की आईनी बेंच को भेज दिया है। 19 सितंबर साल 2019 सुप्रीम कोर्ट ने दफा 370 की मनसूखी को चैलेंज करने वाली दरख्वास्तों की समाअत के लिए 5 जजों की आईनी बेंच तश्कील दी। 2 मार्च 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने दफा 370 की दफात को मनसूख करने के मरकज के फैसले के आईनी जवाज को चैलेंज करने वाली दरख्वास्तों के 7 जजों के बड़े बेंच का हवाला देने से इनकार कर दिया। 25 अप्रैल साल 2022 सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर में जारी हदबंदी की मशक को देखते हुए एक दरखास्त गुजार की फौरी समाअत की दरख्वास्त करने के बाद दफा 370 की दफात को मनसूख करने के मरकज के फैसले को चैलेंज करने वाली गर्मियों की तातीलात के बाद फहरिस्त साजी पर गौर करने पर इत्तेफाक किया है। 11 जुलाई 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो दफा 370 की मनसूखी को चैलेंज करने वाली दरखास्तों पर 2 अगस्त से रोजाना समाअत शुरू करेगी। 2 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने दफा 370 की मनसूखी को चैलेंज करने वाली दरखास्तों पर समाअत शुरू की। 5 सितंबर 2023 को अदालत ने इस मामले में 23 दरख्वास्तों पर 16 दिन तक समाअत के बाद फैसला महफूज किया और आज 11 दिसंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने दफा 370 को मनसूख करने के हुकूमत के फैसले को आईनी तौर पर दुरुस्त करार दिया और अगले साल 23 सितंबर तक असेंबली इंतखाबात कराने के लिए इकदाम करने की भी हिदायत दी है। आर्टिकल 370 की मनसूखी पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने समाजी राबता साइट एक्स पर लिखा कि दफा 370 की मनसूखी का आज का फैसला तारीखी है और आईनी तौर पर 5 अगस्त 2019 को हिंदुस्तान की पार्लियामेंट के जरिए लिया गया फैसला बरकरार रखता है। यह जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बहनों और भाइयों के लिए उम्मीद, तरक्की और इत्तेहाद का एक शानदार
ऐलान है। अदालत ने अपनी गहरी दानिशमंदी के साथ इत्तेहाद के इस जौहर को मजबूत किया है। उन्होंने लिखा कि वो जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों को यकीन दिलाना चाहता कि आपके ख्वाबों को पूरा करने के लिए हमारा अज़म अटल है। हम इस बात को यकीनी बनाने के लिए पुरज़म हैं कि तरक्की के सम्राट न सिर्फ आप तक पहुंचे बल्कि उनके सम्राट हमारे माशरे के सबसे कमजोर और पसमानदा तबकों तक पहुंचे, जिन्हें आर्टिकल 370 की वजह से नुकसान उठाना पड़ा। आज का फैसला सिर्फ कानूनी फैसला नहीं है, ये उम्मीद की किरण है, एक रोशन मुस्तकबिल का वादा है और एक मजबूत ज्यादा मुत्तहिद हिंदुस्तान की तामीर के इज्तिमाई अज़म का सबूत है। दफा 370 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम करते हुए मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने आज साबित कर दिया है कि आईनी शिक को मनसूख करने का फैसला मुकम्मल तौर पर आईनी था। अमित शाह ने कहा कि वो दफा 370 को मनसूख करने के फैसले को बरकरार रखने वाले सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के फैसले का खैर मकदम करता है। उन्होंने कहा कि 5 अगस्त 2019 को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने दफा 370 को मनसूख करने का एक बसीरत अंगेज फैसला लिया। तब से जम्मू कश्मीर में अमन और मामूलात लौट आए हैं। तामीर और तरक्की ने वादी में इंसानी जिंदगी को एक बार तशद्दुद से छुटकारा हासिल करने के लिए नया मानी दिया है। सयाहत और ज़राअत के शोबों में खुशहाली ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों के बाशिंदों की आमदनी की सतह को बढ़ाया है। अमित शाह ने कहा कि आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने साबित कर दिया है कि दफा 370 को मनसूख करने का फैसला मुकम्मल तौर पर आईनी था। इधर भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर के सदर रविंदर रैना ने अदालत उज़्मा के फैसले का खैर मकदम करते हुए कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की आईनी बेंच ने तारीखी फैसला सुनाया है और उन्हें कहा कि दफा 370 की वजह से जम्मू कश्मीर के SC, ST और दीगर पसमानदा तबकों के लोगों के साथ नाइंसाफियां हुई है और उन्होंने उन हुकूक से उन्हें महरूम रखा गया जिसके वो मुस्तहिक थे। से इस निर्णय का स्वागत करते हैं। हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है और हमारे देश की जो न्यायपालिका है, जो हमारे देश की जुडिशरी है, वो सर्वोपरि है। हर एक नागरिक देश का पूरी ईमानदारी के साथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का एहतराम करता है, उसकी रिस्पेक्ट करता है। हमारी अदालतें देश को न्याय देती हैं और एक न्याय देने वाला फैसला जो जम्मू कश्मीर की 1,40,00,000 लोगों के लिए यह निर्णय हुआ है, यह निर्णय जनता के लिए है। गरीबों, मस्कीनों, ज़ईफों और बेसहारा लोगों को एक सहारा देने वाला है। और मैं उम्मीद रखता हूं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के इस फैसले के बाद अब जम्मू कश्मीर के अंदर धारा 370 को लेकर सियासत बंद होगी। यहां इस पर कटाक्ष और टीका टिप्पणी बंद होंगी और सब मिलजुल कर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलजुल कर एक होकर जम्मू कश्मीर के अच्छे मुस्तकबिल के लिए, जम्मू कश्मीर में अमन और खुशहाली के लिए, जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए, अपने बच्चों, नौजवानों की खुशहाली और उनके अच्छे मुस्तकबिल के लिए हम सब मिलकर एक होकर डेवलपमेंट के रास्ते के ऊपर आगे बढ़ेंगे, अमन और खुशहाली के रास्ते के ऊपर बढ़ेंगे। हम हृदय से इस निर्णय का स्वागत करते हैं। हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है और हमारे देश की जो न्यायपालिका है
जो हमारे देश की जुडिशरी है वो सर्वोपरि है। हर एक नागरिक देश का पूरी ईमानदारी के साथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का एहतराम करता है, उसकी रिस्पेक्ट करता है। हमारी अदालतें देश को न्याय देती हैं और एक न्याय देने वाला फैसला जो जम्मू कश्मीर की 1,40,00,000 लोगों के लिए यह निर्णय हुआ है, यह निर्णय जनता के लिए है। गरीबों, मस्कीनों, ज़ईफों और बेसहारा लोगों को एक सहारा देने वाला है। और मैं उम्मीद रखता हूं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के इस फैसले के बाद अब जम्मू कश्मीर के अंदर धारा 370 को लेकर सियासत बंद होगी। यहां इस पर कटाक्ष और टीका टिप्पणी बंद होंगी और सब मिलजुल कर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलजुल कर एक होकर जम्मू कश्मीर के अच्छे मुस्तकबिल के लिए जम्मू कश्मीर में। इधर सीनियर वकील और अर्जी गुजार इरफान हफीज लोन ने कहा है कि इसकी लड़ाई कानूनी और अवामी सतह पर जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि ये एक सियासी मसला है और सियासी तौर पर इससे लड़ा जाएगा। पे भी और कानूनी सतह पे भी लड़ेंगे और इंशाल्लाह इससे पहले संपत प्रकाश जजमेंट आई थी, उन्होंने कहा था ये परमानेंट है। उसके बावजूद बीजेपी ने आंदोलन किया, सत्ता हासिल की और इसे हटाया, जबकि संपत प्रकाश में क्या कहा गया था, ये परमानेंट है। इसी तरीके से हमारे पास जो सियासी तो लड़ना है, क्योंकि एक सियासी मसला है, सियासी नेचर का है। इंशाल्लाह हम उस पे जरूर लड़ेंगे और पूरे देश में घूमेंगे और न कि 5 अगस्त के फैसले के हवाले से, बल्कि जो हमारे पास 53 की पोजीशन थी, जो जम्मू कश्मीर की असेंबली ने स्वायत्तता, ऑटोनॉमी, अंदरूनी खुदमुख्तारी जिसे कहते हैं, हिंदुस्तान के आईन में उसे हासिल करके रहेंगे। इंशाल्लाह हमारी वो एक बहुत पुरअमन तरीके की लड़ाई है। और आप देखिएगा जिस तरीके से शॉर्ट ऑफ आजादी स्काई विल बी द लिमिट, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा था, जिस तरीके से इन्होंने कहा था आप आइए बातचीत करें, हम इंशाल्लाह एक ऐसा समय फिर आएगा जिस दिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये कहेगी, पूरा देश, भारत के देशवर्ष कहेगा कि आइए बातचीत से समस्या का हल करिए और इंशाल्लाह जो हमारे हुकूक है उनकी बहाली जरूर। क्या रिव्यू में जा रहे हैं आप लोग? मैंने कहा वी विल सी, वी विल कंसल्ट अदर्स एज वेल, तो उसमें हम देखेंगे। सभी आप सब एक साथ थे और अब पीएचडी अलायंस में भी कहीं ना कहीं फूट है, तो क्या उस फूट का नतीजा है ये सब कुछ? देखिए ऐसी बात मत करिए आप, ये कोई पीएचडी तक महदूद मत रखिए, उधर कोई फूट नहीं है। हम सारे कश्मीरी, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और कश्मीर अवाम जो है, डोगरा भाई जो है, हम एक पेज पे है। सियासी इख्तिलाफ अपनी जगह, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स अपनी जगह। हम आज भी कहते हैं कि जो हमारे साथ पॉलिटिकल लेवल का एग्रीमेंट हुआ था उस एग्रीमेंट को इंप्लीमेंट करिए, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को इंप्लीमेंट करिए। ये पॉलिटिकल नेचर का मसला है। 1 लाख लोग मारे गए हैं, मेरा बाप, मेरे वालिद साहब गोलियों के शिकार हुए हैं, हर घर की वहां पर ये कहानी है। जम्मू कश्मीर एक मसला है, 3 युद्ध हुए हैं, डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट है, लाखों में वहां फौजी तैनात है, और उसके बाद आप कहेंगे कि ये कोई मसला नहीं है। ये हमारा एक मसला है, हम अपने अधिकारों के लिए फाइट करेंगे। लेकिन सिर्फ एक आवाम से, जम्मू कश्मीर के आवाम से अपील है, पुरअमन रहिए, पेशेंस दिखाइए, दूर अंदेशी करिए। ये एक बहुत बड़ा मुल्क है, ये एक जमहूरी मुल्क है, उम्मीद ना लूज करिए। ये एक सियासी स्ट्रगल करनी है पुरअमन तरीके से, और देखिएगा इंशाल्लाह जिस तरीके से इससे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा था कि हम इधर डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के चेयरमैन गुलाम नबी आजाद ने आईन की दफा 370 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अफसोसनाक और बदकिस्मती करार दिया है, लेकिन कहा कि उन्हें यह फैसला कबूल करना होगा। आजाद ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अदालती फैसला अफसोसनाक और मायूस कुन है। जम्मू कश्मीर के साबिक वजीर आला ने कहा कि खित्ते के लोग अदालत उज़्मा के 5 जजों की बेंच के सुनाए गए फैसले से खुश नहीं है। उम्मीद थी, जो भरोसा हमने किया था
बांधा था भरोसा सुप्रीम कोर्ट पर कि वो कश्मीरी अवाम के हक में हो, वो आज नहीं। आज मायूसी है जम्मू कश्मीर के अवाम की, कहीं आर्टिकल 370 को लेकर और जम्मू में दोनों को लेकर, आर्टिकल 370 को भी और 35A को भी। और 35A जो महाराजा हरि सिंह ने 1925, 1927 और 1930 में 3 ऑर्डर किए थे और उसमें उन्होंने स्टेट सब्जेक्ट बनाया था, जो स्टेट सब्जेक्ट आज तक चल रहा था 2019 तक, कि जिसके पास स्टेट सब्जेक्ट होगा वही नौकरी कर सकता है, वही जमीन खरीद और फरोख्त कर सकता है। ये महाराजा के कानून को जब हमारा आईन बना जम्मू कश्मीर का, स्टेट का, वो हिंदुस्तान। उधर जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने भी सुप्रीम कोर्ट के दफा 370 के सुनाए जाने फैसले पर अपना रद्दअमल जाहिर किया है। मैं अभी श्रीनगर अपने घर के अंदर आपसे इस तरह मुखातिब हो रहा हूं क्योंकि जैसे मैं अभी दिखाने जा रहा हूं, घर के गेट पे ताला लगा हुआ है, तो मुझे मिलने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। मैं चाहता था कि आज सुप्रीम कोर्ट में जो हुआ उसका मैं रिएक्शन और मैं उसके बारे में अपने ख्यालात डायरेक्ट मीडिया को दे देता, जिसके ज़रिए वो आप तक पहुंचा देते, लेकिन उन्हें मेरे घर आने की इजाज़त नहीं और मुझे यहाँ से निकलने की इजाज़त नहीं, तो मजबूरन मुझे आज ये तरीका अपनाना पड़ रहा है। आज सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार 370 को, 35A को, जम्मू कश्मीर को 2 हिस्से में तकसीम करना, यूनियन टेरिटरी का दर्जा देना, इन सब मामलों पे अपना फैसला सुनाया। क्या यही फैसले की हम उम्मीद लगाए बैठे थे? बिल्कुल नहीं। इधर पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने भी अपने एक वीडियो पैगाम में कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से अगरचे जम्मू कश्मीर के लोग काफी मायूस है, लेकिन उम्मीद रखनी होगी। उन्होंने कहा है कि ये जम्मू कश्मीर की हार नहीं बल्कि ये उस हिंदुस्तान की हार है जिसके साथ जम्मू कश्मीर ने हाथ मिलाया था। और उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट ने जो 5 अगस्त 2019 को जो गैर कानूनी और गैर आईनी फैसला किया उसको आज जायज और आईनी करार दिया गया, जो कि बदकिस्मती है। मेरे प्यारे हमवतनों, हिम्मत मत हारो, उम्मीद मत छोड़ो। जम्मू कश्मीर ने बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं। सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला ये एक पड़ाव है, मुश्किल ही सही पर पड़ाव है, ये मंजिल नहीं है हमारी। इसको मंजिल समझने की गलती मत करो। हमारे मुखालफिन चाहते हैं कि हम उम्मीद छोड़ के, दिल बर्दाश्ता होके शिकस्त को तस्लीम करें, पर ऐसा नहीं होना है। आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि 370 आर्जी है, इसलिए इसको हटाया गया। ये हमारी हार नहीं है, बल्कि आइडिया ऑफ इंडिया की हार है, हिंदुस्तान के तस्वुर की हार है। जिस तस्वुर के साथ, जिस आइडिया ऑफ इंडिया के साथ, जिस गांधी के हिंदुस्तान के साथ, जिस गंगा जमनी तहजीब के साथ जम्मू कश्मीर के मुसलमानों ने पाकिस्तान को दरकिनार करके यहाँ के सिखों के साथ, यहाँ के बुद्धिस्ट के साथ, यहाँ के क्रिश्चियंस के साथ, यहाँ के हिंदू भाइयों के साथ, गांधी के मुल्क के साथ हाथ मिलाया, आज जो उस आइडिया ऑफ इंडिया की हार है। आज जो हरकत मरकजी सरकार ने पार्लियामेंट के अंदर नाजायज, गैर कानूनी, गैर आईनी की, उसको जो जायज करार दिया गया, वो जम्मू कश्मीर के लिए ही नहीं बल्कि आइडिया ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान के तस्वुर के लिए एक सजाए मौत की खबर से कम नहीं है। आप जानते हैं 1947 में एक सरकार थी,
पार्लियामेंट था, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन बना, उन्हें जम्मू कश्मीर के साथ वादे किए और जम्मू कश्मीर को एक खुसूसी पोजीशन दी। उसके बाद 77 साल के बाद एक दूसरी जमात आई जिन्होंने पिछले 77 साल से एक ही रट लगाई थी कि हम पावर में आएंगे और 370 को खत्म करेंगे। उन्होंने कर दिया, मगर ये हमारी हार नहीं है, ये इस मुल्क की हार है। धोखा उन्होंने किया, हमने तो नहीं किया। आज 370 को आर्जी कहते हुए उन्होंने मुल्क को कमजोर कर दिया। उन्होंने जम्मू कश्मीर में उन ताकतों को मजबूत किया जो बार बार कहती थी। नाजरीन, इसी के साथ ही खबरनामा इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। अपने मेजबान गौहर कुछे को इजाजत दीजिए, लेकिन आप गुलिस्तान न्यूज के साथ जुड़े रहे, क्योंकि गुलिस्तान न्यूज पर खबरों, तज्जियों और तबसरों का सिलसिला जारी रहेगा। अल्लाह हाफ़िज़।